Today I would like to speak on the topic called the spirit man. और आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो है कि एक आत्मिक मनुष्य। As God's children, we are supposed to be men and women filled with the Spirit of God. और एक खुदावन के संतान होने के नाते हम सबको आत्मा से भरपूर होना चाहिए। We are not supposed to be led by just our feelings. और हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि हम अपनी एहसास और भावनाओं से हम आगे बढ़े Or by what we see. और या फिर जो हम देखें। But as God's children, we are supposed to be led by the Spirit of God. लेकिन एक खुदावन के बच्चे होने के नाते हम सब खुदावन के आत्मा में चलें। And God talks about that very clearly in the book of Deuteronomy. और खुदावन का वचन इस बारे में बहुत ही खुलकर कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। If you want to be successful in life, अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, if you want to live a life about being a conqueror, और अगर आप एक हारे हुए जीवन से ऊपर उठकर विजेता वाला जीवन जीना चाहते हैं, then you will have to be a man and a woman that is filled with the Spirit of God. तो आपको वो पुरुष और स्त्री बनना पड़ेगा जो कि आत्मा से भरपूर हो। Let's go with the book of Deuteronomy chapter 28. आइए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका अध्याय 28 में चलें। When we look at Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2, जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 की आयत का 1 और 2 देखते हैं, it says, Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, and observe carefully all his commandments, which I command to you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। When you begin to read this verse, there are two important things that you will be able to notice. जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो आप इसमें दो खास बातें हैं जिनको आप देखेंगे। The first thing it says, if you listen to my voice, तो पहली बात यह है कि अगर तू मेरे शब्दों को सुने, which means it is talking about the Rhema word. इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर बात कर रहा है रेमा शब्द की। What is the meaning of Rhema? रेमा का अर्थ क्या है? Rhema is the voice of God. रेमा एक खुदावन की आवाज है। Another, if you begin to see further, it says, if you observe carefully all the commandments that I command to you in the word. और दूसरी बात ये कहता है कि अगर तू चौकसी से पूरी करने पर चित्त लगाकर उसकी सुने, तो मेरी आज्ञा को पूरे करने पर। It's not about hearing alone, it is reading and observing. ये सिर्फ अकेला सुनने के बारे में नहीं है, ये पढ़ना और उसको जांचना भी। And that is the Logos word. और ये है कि लोगोस शब्दों वाला। The Logos is the word that is written in the Bible. जो लोगोस एक ऐसा वचन है जो कि इस पुस्तक में लिखा So हुआ है। as children of God, we are supposed to have both the Rhema and the Logos. और खुदावन की संतान होने के नाते हमारे पास एक लोगोस और रेमा दोनों ही शब्द होने When चाहिए। you also begin to read this Bible verse, you will also understand the intent and the purpose of God for His children. और जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं उस खुदा के उद्देश्य को और उसके भावनाओं को जो उसके बच्चों के प्रति है। What is the intent, the plan and purpose of God for each one of us? खुदा के लिए, हम सब के लिए, हर एक जन के लिए क्या उद्देश्य है, क्या योजनाएं हैं? His plan is to lift you up. उसकी जो योजनाएं हैं कि वो आपको ऊंचा उठाए। His plan is to bless you. उसकी योजना है कि वो आपको आशीषित करे। His plan is that each one of us will live a victorious life. उसकी योजना है कि हर एक जन हम में से विजेता वाला जीवन जिए। Hallelujah. Come on, say to your neighbor, God plans for you to have a victorious life. आइए अपने पड़ोसी से कहें कि खुदा की योजना है कि तू एक विजेता वाला जीवन जियो। Come on, say it when you say it. आइए एक दूसरे से कहें, God has a plan खुदा के purpose पास for you to have a victorious life. खुदा के पास एक योजना है कि तू एक विजेता वाला जीवन जियो। Now let us go to number 1. आइए हम पहले अंक की तरफ बढ़ते हैं। Listening to the voice of God. खुदा के शब्दों को सुनना। What is the voice of God? खुदा की आवाज क्या है? Can you recognize the voice of your heavenly Father? क्या आप अपने स्वर्गीय पिता की आवाज को पहचान सकते हैं? The Bible in the book of John chapter 20 verse 27 says, यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 20 का 27 कहता है, listen to this carefully. इस बात को आप ध्यान से सुने। It says, my sheep knows me and I know my sheep, and the sheep
knows my voice. ये कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मुझे जानती है, मैं उनको जानता हूँ और वो मेरी आवाज को पहचानती हैं। It says they will follow me. वो कहता है कि वे मेरा अनुकरण करेंगे। If you consider yourself to be the children of the Most High God, अगर आप अपने आप को उस सर्वशक्तिमान खुदा की संतान मानते हैं, will you be able to recognize the voice of your Father? क्या आप इस योग्य होंगे कि आप अपने स्वर्गीय पिता की आवाज को पहचान सके? When I come home जब मैं घर आता and I knock at the door और जब मैं दरवाजे पे खटखटाता and I begin to shout और मैं जब बोलता हूँ and I say, "This is your Father," और मैं कहता हूँ ये तेरा पिता है, then they are very happy to open the door. तो वो बहुत ही खुश होते हैं दरवाजा खोलने पे। Sometimes my son is afraid to go to the toilet all by himself, कभी कभी जो मेरा बेटा है वो वॉशरूम में अकेले जाने में डर लगता है उसे, and I used to stand in the door. और मैं दरवाजे के साइड में खड़ा हो He would जाता हूँ ask me if you were still there. और वो मेरे से पूछता है क्या आप अभी भी वहां पर And I हैं? would say, "Yes, I am here." और मैं कहता हूँ कि हाँ मैं यही हूँ। It is an assurance in which comforts you. ये एक सुनिश्चितता है कि जो उसको आराम देती है। You know this voice is a voice that can be trusted. ये वो जानता है कि ये एक ऐसी आवाज है जिसमें वो विश्वास कर This सकता है। voice gives you confidence. उसकी आवाज आपको एक भरोसा देती His है, voice gives you the power. उसकी आवाज आपको एक सामर्थ्य देती है And no strength in the world can replace his voice. और कोई भी ताकत इस संसार की उस आवाज को नहीं बदल Now, सकती। my dear brothers and sisters, तो मेरे भाई और बहनों, how do we listen to this voice? आप किस तरीके से इस आवाज को How सुनते do हैं? you recognize his voice in your life? आप अपने जीवन में कैसे इस आवाज को पहचान पाते हैं? Take you to the place as to how you can do that. अब आइए मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाता हूं जहां पर आप इसको कैसे कर सकते Let me take you to the book of Luke chapter 4 verse 1. हैं। मैं आपको लूका की पुस्तक उसका अध्याय 4 के 1 में ले जाऊंगा। In Luke chapter 4 verse 1 it says, Jesus being filled with the Holy Spirit returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Before this particular verse, इस आयत से पहले you know that Jesus was baptized. आप जानते हैं कि यीशु मसीह का When बपतिस्मा he was baptized, he was filled with the Holy Spirit. जब उनका बपतिस्मा हुआ तो वो आत्मा से भर गए। Say, filled with the Holy Spirit. आइए कहे आत्मा से भर जाना। Come on, say, fill me with your Holy Spirit. आत्मा से भरा रहो। या हालेलुया, आत्मा से भर दो मुझे, आपकी पवित्र आत्मा से भर दो। When the Holy Spirit come upon me, and the Holy Spirit filled Jesus. जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तो पवित्र आत्मा से वो भर गए। He was so filled with the Spirit that he knew that the Spirit was leading him into the wilderness. और अब वो आत्मा से इतना भर गए कि वो जानते थे कि जो पवित्र आत्मा है वो उन्हें जंगल की ओर ले जा रहा है। And there he fasted for 40 days and 40 nights. और वहां पर उन्होंने 40 दिन और 40 रात का उपवास करा। He was so full of the Spirit. वो एकदम आत्मा से भरे हुए। The Bible says that Jesus was always led by the Holy Spirit. वचन कहता है कि जो खुदावन यीशु मसीह है वो हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में Read the चले। Bible, you will see he was led by the Spirit to go into certain places. तो जब आप वचन में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जगहों में Now जाते थे। you begin to understand that in order to be successful, to be at the right place at the right time, you have to be led by something extraordinary above the natural, and that is the Holy Spirit. और अब आपको ये समझना होगा, अगर आपको किसी स्थान पर जाना है, किसी सही समय पर जाना है, तो आपको एक ऐसे सामर्थ्य की जरूरत है जो साधारण नहीं है, एक ऐसे जन की जरूरत जो कि है जो पवित्र आत्मा है। At the beginning of this sermon, I told you what the intent and the plan and the purpose of God is to make you successful and victorious. और इस संदेश से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि खुदा की योजना ये है, उद्देश्य ये है कि कामयाब होने के लिए आपको हर एक जन आत्मा से भरे। But how can you be successful? How can you begin to materialize the cunning purpose of God when you do not led yourself, but when you're not led for yourself by the Spirit of God? लेकिन आप कामयाब कैसे हो सकते हैं, आप कैसे खुदावन के उद्देश्य में पूरा हो सकते हैं अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही ना चले तो। If you're not filled with the Holy Spirit, then you will not be led by the Spirit of God, and you will not be able to hear the voice of God. अगर आप आत्मा से नहीं भरे हुए होंगे तो आप आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पाएंगे और आप आत्मा की आवाज को भी नहीं सुन पाएंगे। These days, many of us very rarely listens to the ordinary radio.
very rarely listens. और आज के दिनों में बहुत ही कम जन हैं जो रेडियो सुनते हैं। Many of us we love to listen to YouTube songs. हम में से बहुत से जन हैं जिन्हें पसंद है YouTube में गीतों को सुनना। But since my childhood, I've always loved to listen to radio. लेकिन मैं बचपन से ही मुझे पसंद है कि मैं रेडियो सुनूं। I remember those days in my college when I used to go with the bus. मुझे याद है अपने कॉलेज के वो दिन जब मैं बसों में जाया करता था। That was during the early 2000, ये है कुछ पहले 2000 के आसपास की बात। 2000, 2001 and 2 and 3. हो सकता है 2001, 2 या 3 की। And the bus DDC driver used to play wonderful Hindi songs. और जो DTC जो ड्राइवर है चालक वो बहुत ही खूबसूरत हिंदी गीतों को चलाता है। And I don't know how 1 hour would pass by listening to all those Bollywood classic songs. और मुझे नहीं पता चल पाता था कि किस तरीके से वो 1 घंटे का सफर बीत गए थे खूबसूरत जो हिंदी के जो क्लासिकल गीत है उनके सुनते से। And at 2 o'clock there used to be some very good English songs. और 2 बजे के आसपास में बहुत ही अच्छे इंग्लिश गीत आया करते थे। I remember being in my college hostel and listening to a movie Sholay in the FM radio. और मुझे याद है अपने कॉलेज के हॉस्टल के दिनों में जब मैं रेडियो में जो पिक्चर है शोले उसको मैं सुनता था। I can imagine how Amjad Khan was standing there and then said Basanti Nacho. और मैं इस चीज को मैं काल्पनिक कर सकता था कि जो अमजद खान है वो क्या खड़ा होता था और कहता था कि बसंती नाच। Radio is a very powerful weapon. जो रेडियो है वो एक सामर्थ्य हथियार। But in order to catch a particular channel, you have to tune the frequency. लेकिन किसी एक खास चैनल को पकड़ने के लिए आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको करना पड़ता है। Sometimes when you are searching the frequency, you might also hear certain connections from China and neighboring countries. कभी-कभी जब आप फ्रीक्वेंसी को अगर आप मिला रहे होते हैं तो आपके जो कुछ कनेक्शंस है वो चाइना या फिर अन्य जगहों में मिल जाते हैं। In order to hear the voice of God, you will have to tune in the frequency of your heart. खुदावन की आवाज सुनने के लिए आपको अपने मन को एक जांचना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। It is like tuning the frequency of the radio channel. ये कुछ ऐसा है जैसे कि रेडियो चैनल को ट्यून करना। How do you tune the frequency of your heart to the frequency of the Heavenly Father? आप किस प्रकार से अपने मन की फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं, ट्यून मिला सकते हैं खुदा की फ्रीक्वेंसी से? You can only do that when you begin to practice being filled with the Spirit of God. ये जब ही हो सकता है जब आप अभ्यास करते हैं पवित्र आत्मा से भरने की और उसमें चलने की। When you begin to have a deeper, intimate relationship with Jesus Christ. जब आपका खुदावन यीशु के साथ गहरा संबंध होता है, जब When you begin to understand the Heavenly Father. जब आप शुरू करते हैं खुदावन स्वर्गीय पिता को और समझने की, When you begin to have a desire to know Him. जब आपके अंदर इच्छा होती है उसको और जानने When की, you begin to have revelations in your life. जब आपके जीवन में नए नए भेद वो उजागर होते हैं, जब And these things are not possible by just reading the Bible alone and coming to Sunday service on a Sunday. और ये सिर्फ जब ही संभव नहीं है, जब संभव नहीं है जब आप सिर्फ वचनों को पढ़ते हैं और सिर्फ रविवार के दिन सभा में शामिल होने वाले। So many of you have read the Bible so many times, आप में से बहुत से जन हैं जिन्होंने वचन को कई बार पढ़ा है, but you still may not be a believer. You still may not be a believer. लेकिन फिर भी आप एक विश्वासी नहीं बन You पाए। still may not know Him. अब आप अभी भी उसको जान There नहीं पाए। are many people in the world who have read the Bible many times for different purpose. ऐसे बहुत से जन हैं इस संसार में जिन्होंने वचन को अलग अलग उद्देश्य से वचन को पढ़ा। There are universities in the Western countries where they have Bible as one of the subjects to research historical facts. और वेस्टर्न देशों में जो बाइबल है वो उनका एक सब्जेक्ट, एक विषय है जिसके ऊपर वो खोज करते हैं ताकि वो इतिहास को जान सके। What is the intent and the purpose of reading the Bible? वचन पढ़ने का आप लोगों का क्या उद्देश्य है? Some of them is just to find the facts and figures. कुछ जन है जिन जो सिर्फ सत्य की बातें और चीजों को जानना Some चाहते of हैं। them is just to nullify that God doesn't exist. कुछ जन ऐसे हैं जो कि सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि खुदा है ही नहीं। But the purpose, the intent of reading the Word is to know Him. लेकिन जो उद्देश्य है, जो सोच है वचन पढ़ने की, वो है कि उसको To जानना, understand Him, उसको समझना, to develop a relationship with Jesus. एक यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता कायम करना। And therefore, coming to worship service is good. It is one of the spiritual exercise. और सभा में आना सबके साथ इस
आराधना की संगति वाले बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। It is obedience. ये एक आज्ञाकारिता है, It is a blessing. ये एक आशीष है। But my dear brothers and sisters, that is not enough to be called a man and a woman filled with the Spirit of God. लेकिन मेरे भाई और बहनों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि तुम ऐसे कहलाओ कि खुदावन के जन और जननी जो आत्मा से भरे हुए हो। You have to know to live in His presence every day तुम्हें जानना होगा उसकी उपस्थिति में हर दिन समय बिताना, and to apply all of the principles and discipline your heart. और हर एक उसके सिद्धांतों को जानना और अपने आप को उस शिष्टाचार के अनुसार ढालना, And discipline your inner man, which is the spirit man. और अपने आप का जो मनुष्य थे उसको आपको डिसिप्लिन में करना। So when you begin to discipline the spirit man, तो जब आप अपने आप को जब आप डिसिप्लिन करते हैं, when आत्मिक you जन के live in the उसमें, conscious presence of the Holy Spirit every day, every moment, जब आप पूरे मन और विवेक से जब आप खुदावन की उपस्थिति में चलते हैं, then the frequency radio of your heart will be tuned to the frequency of the Heavenly Father. तो जो आपके मन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप ही ट्यून इन हो जाती है That is खुदावन why की it is फ्रीक्वेंसी के important साथ। that we spend time in prayer, इसीलिए जो पौलुस है वो प्रार्थना में समय बिताता है, spend time in prayer, और प्रार्थना में समय बिताओ spend time in the spirit man. और खुदावन के आत्मिक जन में समय बिताए। It is advised that every day we are able to spend at least 30 minutes to 1 hour praying in the spirit, exercising ourselves. Then we would unconsciously be connected as a spirit man of God to the Heavenly Father. ये एक अभ्यास है कि आप 30 मिनट से 1 घंटे तक का आप समय बिताए, प्रार्थना में समय बिताए और आप अपने आप ही आपका जो विवेक है वो खुदावन के Or आत्मा से at जुड़ least जाएगा। spend some time in a week to set aside yourself and spend time soaking in the Holy Spirit. और कम से कम हफ्ते में एक बार आप ऐसा समय निकालें जहां पर आप सब चीज से अलग हट जाएं और खुदावन की आत्मा से अपने आप को भरें। Let that be a starting point of developing the discipline of the spirit man in your life. और एक आपके जीवन में एक ऐसा अंक होना चाहिए जहां से आप उसको शुरू करें, उस आदत को बनाएं जहां पर आप आत्मिक जन्म में शामिल That's हो। why every Saturday in LifeGate Church we have a Holy Spirit fellowship. Every इसीलिए Saturday हर शनिवार को लाइफगेट कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं जहां पे हम आत्मा से भरे हो। we pray for 1 hour. हम 1 घंटे तक प्रार्थना We करते pray हैं, in the Spirit. हम आत्मा में We प्रार्थना pray करते in the हैं, tongues. हम अन्य भाषा में We प्रार्थना pray करते for हैं, everybody in the church. हम कलीसिया में हर एक जन के लिए We प्रार्थना करते pray हैं, for ourselves. हम अपने आप के लिए We प्रार्थना pray करते for हैं, open doors. हम दरवाजे खुले उसके लिए प्रार्थना करते हैं, We see how God is working in the lives of everyone. और हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा हर एक जन के जीवन में काम कर रहा है। 3 weeks ago, we were being told that Ravi's mother will not survive because her chest is severely infected because of tuberculosis. और 3 हफ्ते पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि जो भाई रवि है उनकी मां नहीं जीवित रह पाएगी क्योंकि उनको एक बड़ी बीमारी है। The doctor had given their statement. जो डॉक्टर है उन्होंने इन शब्दों को बोल दिया था, On a Saturday, we said we're going to reject what the doctor says. और शनिवार को हमने उस बातों को जो डॉक्टर ने कहा था हमने उसको काटा, We said that is not the final report. और हमने कहा कि ये कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं है। What Jesus says is the final report. जो यीशु कहता है वो है आखिरी We फैसला। started praying for her. हमने उनके लिए प्रार्थना करनी We शुरू began करी, to pray for her in the spirit. हम आत्मा में उनके लिए प्रार्थना करने लगे, We began to pray for healing and deliverance and divine restoration. और हम उनकी चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए और आत्मिक परिपूर्णता के लिए उनके लिए प्रार्थना We करने began लगे। to see after a week that how her health was restored. और हमने देखा कि किस तरीके से 1 हफ्ते बाद उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। We began to feel in the spirit that she would not die, but she would live and come out of the hospital. और हमने आत्मा में ये भापा कि वो मरेगी ना लेकिन जिएगी, और वो हम सब में बीच में आके How शामिल are होगी। you able to sense these things? आप किस तरीके से चीजों को भापते हैं? How are you able to sense about someone's sickness or deliverance or anything? It is through the spirit man. आप किस तरीके से एक आत्मिक जन होने के नाते किसी भी बीमारी या किसी के छुटकारे को आप किस तरीके से भापते हैं? When you begin to be man or woman filled with the Spirit of God, God will direct your destination. जब हम एक ऐसे जन होते हैं, ऐसे जननी होते हैं, जब हम खुदा के आत्मा से भरे हुए होते हैं, सो खुदा हमारे दिशाओं को आगे करता है। Daniel,
जो दानियल है he was a man full of the Spirit. वो एक ऐसा जन था जो पूरा आत्मा से भरा He हुआ was था। a man of prayer. वो प्रार्थना करने वाला He was व्यक्ति a था। diligent man. वो एक धर्मी व्यक्ति था। One day, the king Nebuchadnezzar says, "Could anyone tell what I dreamed?" एक दिन जो राजा नेबुकदनेस्सर है वो कहता है कि क्या कोई बता सकता है कि मैंने क्या स्वप्न देखा And translate the meaning of my dream. और मेरे स्वप्न का जो अनुवाद कर सकता है। And if anybody tell it wrong, he will be killed. अगर कोई भी गलत बताएगा तो उसको मार दिया जाएगा। Everybody was afraid. हर एक जन डर गया था। He was the king after all. वो एक राजा था In the olden days, the king was the Lord. और उन दिनों में जो राजा था वो प्रभु के समान था। Nobody came forward. कोई भी आगे बढ़कर ना आया। Daniel, the man of God, said, "Give me some time, and I will pray and tell you what the word of God says." और वो जो खुदा का जो दास था दानियल उसने कहा मुझे कुछ समय दो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या सोचा। Daniel prophesied and translated exactly what the king dreamt. जो दानियल था उसने एग्जैक्ट वही बात बताई जो राजा ने स्वप्न में देखी थी और उसने वहां पे नबूवती भी करी। How could he do? आप कैसे कर सकते हैं? वो कैसे कर सकता है? Because he was a man who was filled with the Spirit of God. क्योंकि वो एक ऐसा जन था जो आत्मा से भरा He हुआ was था। connected to God every day. वो हर दिन खुदा से जुड़ता था And in order to be a spirit-filled man, और एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होने के लिए there are certain things that he did, and there are certain things that he did not do. कुछ निश्चित बातें हैं जो वो किया करता था और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो वो नहीं किया करता What था। did he do? वो क्या करता था? He prayed. वो प्रार्थना करता था। He said at least 3 times a day. वो दिन में कम से कम 3 बार वो प्रार्थना किया करता He था। was threatened not to pray. He was threatened not to pray, उसको धमकाया गया कि वो प्रार्थना ना करे but he prayed. लेकिन वो प्रार्थना किया। Hallelujah. Amen. Second thing, दूसरी बात he also did not do things that began to affect his life. वो कोई भी ऐसी चीजें नहीं किया करता था जो उसके जीवन पर गलत असर डाले। What he did not do, वो क्या नहीं किया करता he था? did not worship idols. वो जो मूर्तियां थी उनकी उपासना नहीं He करता did था। not eat food or drink wine or alcohol that defiled his life. वो कभी भी दारू या कुछ भी ऐसा भोजन नहीं खाता था जो उसके जीवन को खराब He करे। did not do what the pagans do. वो कुछ भी ऐसा नहीं करता था जो अविश्वासी लोग Why करते is it थे। important to have such a principle? क्यों जरूरी है कुछ ऐसे सिद्धांतों का होना? In the conference, you have learned the importance of protecting your heart. और इस सम्मेलन में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आपने सीखा कि अपने मन की रक्षा करने के It is बारे में। important that your heart is protected because the heart is the source of all things. ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने मन की रक्षा करें क्योंकि जो मन है वो हर एक इच्छाओं का If you होता है। want to walk with God, अगर आप खुदा के साथ if चलना you want चाहते to हैं, be a man and a woman filled with the Spirit of God, अगर आप एक ऐसे पुरुष और स्त्री बनना चाहते हैं जो आत्मा से भरे हुए हो, you want to be successful in life, अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना we will चाहते हैं, have to develop ourselves to be men and women filled with the Spirit of God. हमें अपने आप को ऐसा बनाना होगा जो ऐसा मनुष्य और स्त्री जो खुदावन के आत्मा से भरा हुआ हो। What kind of job should I take? और मैं किस प्रकार की नौकरी करूं? Should I invest in this business? क्या मैं इस बिजनेस कारोबार में लागत लगाऊं? Should I marry this man? क्या मैं इस पुरुष से विवाह Should I करूं? marry this woman? क्या मैं इस स्त्री से विवाह करूं? Should I say yes or no to the offer? जो मेरे पास जो निमंत्रण आया है क्या मैं उसके लिए हाँ कहूं या Should I नहीं? go to this place? क्या मैं इस जगह पर जाना चाहिए? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? Sometimes you are so confused. कुछ समय आप बहुत ज्यादा ही शंका में होते हैं। All this could be wiped out if we are men and women of the Spirit of God. ये हर बातें कट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी अगर आप एक ऐसे जन और जननी हैं जो खुदा के आत्मा से भरे हैं। Genesis 5:24 says, Enoch walked faithfully with God, and there he was no more because God took him away. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Enoch was taken up to heaven. जो हनोक था उसको स्वर्ग में उठा लिया He was गया। a man who walked with God. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो खुदा के साथ चलता था। Are you a man and woman who walk with God? क्या आप ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो खुदा के साथ चलते हैं? Sometimes you want to walk with God only during your difficult times. कभी कभी
कि आप खुदा के साथ सिर्फ इस जब ही चलना चाहते हैं जब आप किसी कठिनाइयों में होते हैं, or you want to walk with God when you are happy. और या फिर आप जब चलना चाहते हैं जब आप खुश होते हैं। But we do not walk with God every day. लेकिन हम खुदा के साथ हर दिन नहीं चलते। But it is important that we be men and women who walk with God every day. लेकिन ये बहुत ही जरूरी है एक ऐसा जन और जननी होने के लिए कि आत्मा से भरने की हम हर दिन खुदा के साथ चलें। Say to your neighbor, अपने पड़ोसी से कहें, walk with God. खुदा के साथ चलो। एक बार फिर बोलिए, फिर से कहें, come on, say to your neighbor, walk with God. अपने पड़ोसी से कहें, खुदा के साथ चलो। Amen. Second thing, दूसरी बात, apart from listening to the voice of God, which is the Rhema voice, another thing is the logos. और उस रेमा शब्द के अलावा जो कि एक सुनने वाला वचन है, उसके अलावा एक और है जो कि लोगोस। The Bible talks about observing all the commandments carefully in the book of Deuteronomy 28 verses 1 and 2. वचन कहता है कि हर एक आज्ञाओं को ध्यान से चौकसी लगाकर पढ़, जो कि है व्यवस्था विवरण के पुस्तक 28 का 1 में। Every one of you, do you have your Bible? क्या हम सब के पास अपनी अपनी बाइबल है? Apart from your app Bibles, और जो मोबाइल में जो ऐप है बाइबल, उसके अलावा I encourage each one of you, you should have your own Bibles, the not Bibles. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँ कि आप सब हर एक जन अपनी एक व्यक्तिगत बाइबल रखें, Because it is a holy book. क्योंकि ये एक पवित्र पुस्तक है। Once upon a time, there was a boy who was so afraid to sleep at the night time. एक बार एक लड़का था जो कि रात में बहुत डरता था सोने के दिन, सोते वक्त। And he began to hold the Bible and sleep every night. वो हर रात को उस बाइबल को अपने से जोड़कर रखकर सीने पर रखकर सोता था। And once it was so dark, और एक बार जब बहुत ही अंधेरा there हुआ, were storms आंधी आई and thunder. और भूचाल सा, And he began to think the devil and the monster will come into his room. और उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो शैतान है वो उसके कमरे में आए। So he began to grab it. He thought it was the Bible. He grabbed hold of it. तो फिर उसने वचन के पुस्तक उठाई और उसको जकड़ कर पकड़ He लिया began to hold on to his chest. और उसने अपने उसको छाती से लगा He लिया began to pray and sleep. और वो प्रार्थना करने लगा और वो सो गया। In the morning when he woke up, it was not the Bible. It was the Oxford Dictionary. और जब वो सुबह उठकर उसने देखा तो वो बाइबल नहीं थी, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी। Hallelujah. The Bible is the Word of God. जो बाइबल है ये खुदावन का वचन है। And the Holy Spirit is always present with you. जो पवित्र आत्मा है वो हर समय आपके साथ उपस्थित I होती है। really want to encourage you to read the Bible by having a manual Bible on your own. और मैं आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सब अपनी अपनी व्यक्तिगत बाइबल पढ़ें। What is the importance of a Bible? इस पुस्तक की क्या अहमियत है? When you begin to read the Bible, there are certain things that God will reveal to you. जब आप वचन को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी निश्चित बातें होती हैं जो खुदा आपको भेद खोल कर दिखाता है। He began to reveal to you the intent of His heart, the purpose of His heart, the plan of His heart for you and for me. वो उस वचन में से वो अपने इच्छाओं को, अपने उद्देश्य को जो कि आपके लिए और हमारे लिए उनको खोल कर दिखाता है। You will understand His character. आप उसके चरित्र को समझ You will पाएंगे, understand His personality. आप उसकी पर्सनैलिटी को समझ And पाएंगे you will understand His promises. और आप उसके वायदे को भी समझ पाएंगे। Last Sunday, I spoke on the sermon to speak and say only what God says about you. पिछले रविवार जो मैंने संदेश में कहा था कि वही बोले जो खुदा बोलता है। And I quote a few Bible verses which speaks about who you are in Christ Jesus. और मैंने कुछ वचन के जो आयतें हैं मैंने उनको रखा हुआ है जो कि कहती हैं कि यीशु मसीह आपके बारे में क्या कहता है। And there are very many examples as to how we are supposed to live our life. और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि बताते हैं कि हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। Don't look to the YouTube to decide what kind of a life you will live. और YouTube में ना जांचे कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए। Don't look to the Instagrams. इंस्टाग्राम में ना देखें, Don't look to the TikTok, टिकटॉक में ना देखें, because you will end up becoming a dancer. क्योंकि आप फिर अंत में एक डांसर बन के रह जाएंगे। You will end up becoming a cook. आप एक खाना बनाने वाले पकवान बन के रह जाएंगे। Very long time ago, I had a very good friend of mine.
और काफी लंबे समय पहले मेरा एक अच्छा दोस्त था And in the office, she was knitting a sweater. और दफ्तर में वो जो ऊन थी उनको बुन रही थी And then she started with the intention of making a sweater. और उसने इस सोच के साथ शुरू करा था कि वो एक स्वेटर बनाएगी But as she began to make, she realized that her knitting is turning out to be a socks. लेकिन जब वो बनाती गई और उसको बाद में महसूस हुआ कि वो तो आगे जाके एक जुराब बन गया My dear sisters, जो मेरी प्यारी बहनें those of you who are interested in knitting, जिनको ये ऊन बुनना पसंद है many times you start with the intention to make a sweater, but finally come to realize that it has turned out to be a socks. कभी कभी आप इस उद्देश्य के साथ आप बुनने लगेंगे कि वो एक स्वेटर बने लेकिन अंत में आकर वो एक जुराब में खत्म हो जाएगा तो यही बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ When you read the Bible, जब आप वचन को पढ़ते हैं you read with the intent of knowing Him. जब आपकी इच्छा होती है उसको There are जानने certain की examples in the Bible. वचन में कुछ उदाहरण For example, marriage. कुछ जैसे उदाहरण विवाह को What लेकर does God speaks about marriage? खुदा विवाह को लेकर क्या कहता है And marriage is a beautiful, holy institution created by God. जो विवाह है वो एक खूबसूरत रिश्ता है जो कि खुदावन के द्वारा रचा गया है When we look into Solomon and David, we see them as good examples in the Bible to be a man of success. जब हम दाऊद और सोलोमन की तरफ देखते हैं वचन में देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छे एक कामयाब व्यक्ति थे But they are not good examples of marriage. लेकिन वो विवाह के उसमें वो अच्छे उदाहरण नहीं दे Their marriage life was not successful. उनका जो विवाहित जीवन था वो कामयाब नहीं हुआ They had many wives उनकी कई पत्नियां थी and they had many children. और उनके कई बच्चे थे And such that there were fight among the families. और कुछ ऐसा कि उन परिवारों के बीच में झगड़े होते थे There was mistrust among the children. उन बच्चों के बीच में भरोसा नहीं था And all of a sudden, you also know at the end, the children turned against King David and Solomon. और आगे जाके आप देखेंगे जो बच्चे हैं वो अपने ही पिता के विरुद्ध में उठ खड़े हुए Because God's intent of a marriage is not to mess up in that way. क्योंकि जो खुदा का जो उद्देश्य है विवाह का वो कुछ ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को बिगाड़ दे We are not animals. हम जानवर नहीं हैं You see, when we look in the book of Matthew chapter 19 verse 8, जब आप मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 19 का 8 देखते हैं Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा Moses, because of the hardness of your heart, permitted to divorce your wife, but from the beginning it was not so. उसने उनसे कहा मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था आरंभ से ऐसा नहीं था ऐसा it was not like that from the beginning. ये शुरुआत से ऐसा नहीं था God intended for you to have one wife and one husband. खुदा का उद्देश्य ये है कि आपका एक जीवन में सिर्फ एक ही साथी हो To जीवन love साथी each other in spite of your flaws. और To love each other in spite of your weaknesses. और अपनी कमजोरियों के हटाकर आप एक दूसरे से प्रेम करें I think it is very difficult to manage one wife. ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक पत्नी से विवाह And करना also for one wife to manage one husband. और वो एक पत्नी के लिए भी कि एक पति से विवाह करना Imagine myself how many years I have spent trying to understand my wife for 11, 12 years now. सोचिए कि मुझे खुद कितना समय लगा अपनी पत्नी को समझने के लिए 11-12 साल Every day is a new revelation for me. हर एक दिन नया प्रकाशन होता है मेरे लिए And I'm sure the same thing happens for her too. और मैं निश्चित हूँ कि उसके लिए भी ऐसा होगा मेरे You are not able to handle even one woman. Imagine Solomon and David handling 600 to 700 wives. सोचिए कि आप एक पत्नी को नहीं संभाल पा रहे हैं जैसे और सोचिए कि जो सुलेमान था उसकी 700 से 800 पत्नियां थी There are problems of extramarital affairs. जब भी विवाह के अलावा आप कोई दूसरा बाहरी संबंध रखते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ समस्या And आती they है will never be satisfied. और जो लोग हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते 2 Timothy chapter 3 verse 12 says the leaders in the church should only have one wife and should be able to manage the children and house as well. दूसरी तिमोथी की पुस्तक ये कहती है कि जो व्यक्ति है उसकी सिर्फ एक ही पत्नी होनी चाहिए Hallelujah. Hallelujah. Anybody is planning to have more than one wife? क्या कोई ऐसा है हमारे बीच में जो प्लान बना रहा है एक से ज्यादा पत्नी रखने की I'm telling you, do not take that step.
मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कदम ना उठाइएगा। It is impossible to manage one wife. ये असंभव है कि आप एक पत्नी को संभालें, And it is impossible until infinity to manage more than a wife. और ये कि असंभव है, अनंत तक असंभव है कि आप कई बीवियों को संभालें। क्या आप लोग मेरे साथ हो पतिदेव? ये देखो, हाँ, सब लोग हाथ पे हाथ मिलाते जा रहे हैं। Hallelujah. God is good. And that is why God knew that it is said, the intent of God in the beginning was that you will only have one wife and one husband. और इसीलिए खुदा कहता है कि खुदा का उद्देश्य यही है, विचार यही था शुरुआत से कि आपकी सिर्फ एक ही पत्नी हो, To love one another, कि एक दूसरे से प्रेम करें, encourage one another, एक दूसरे को हिम्मत दें, in spite of all of the weaknesses we all have. और हर एक कमजोरियां जो हमारे अंदर है, There are certain commandments. कुछ आज्ञाएं हैं। It talks about honoring the parents ये बताता है अपने माता पिता का सम्मान करें so that you will live long. ताकि आप लंबी आयु पाएं। Hallelujah. There are so many things the Word of God says, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वचन बताता है, but then it's called laws. लेकिन उन्हें नियम कहते हैं। So, Bible is a compilation of God's thoughts, plans, purpose for your life and all the creation. और जो ये बाइबल है, ये पुस्तक है, हर एक चीज का जोड़ है, मेन है, जहाँ पे आप उसके उद्देश्य को, उसके विचारों को, उसके कामों को देख पाते हैं। Whereas the Rhema word is only the word for a specific person, for a specific purpose and a specific situation. जो रेमा शब्द है वो सिर्फ किसी एक खास जन के लिए होता है, खास उद्देश्य के लिए होता है, खास काम के लिए होता है। Hallelujah. See, Rhema words are only for specific person, specific purpose, specific situation. It is a one-to-one basis. जो रेमा शब्द है वो किसी एक खास व्यक्ति के लिए होता है, खास उद्देश्य से होता है और खास स्थिति के लिए होता है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत जन के लिए होता Be है। open as to how God is going to speak into your lives. आप अपने मनों को खुला रखें कि खुदावन किस तरीके से वो आपसे बात करें। God wants you to live a victorious life. खुदा चाहता है कि आप एक विजेता वाला जीवन God जिए। wants you to live a prosperous life. खुदा चाहता है कि आप एक बढ़ोतरी वाला जीवन जिए। How do you know that? आप कैसे जान सकते हैं? How do you know that? How are you so confident about that? आप कैसे जान सकते हैं? आप इतने भरोसेमंद कैसे हैं इस चीज Because को the लेकर? Bible says in 3 John 1 and 2, क्योंकि वचन कहता है, तीसरा यूहन्ना की पुस्तक 1 और 2 में, it says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। How do you know that God wants you to be victorious and live a conqueror life? आप कैसे जान पाएंगे कि खुदा चाहता है कि आप एक विजेता वाला जीवन जिए? It says in the book of Romans chapter 8 verse 37, we are more than conquerors through him who loved us. हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है। And that is why we know that God wants me to be victorious, to live a life more than a conqueror. और यही बात है जो हमें बताती है, हम जान पाते हैं कि खुदा चाहता है कि हम एक विजेता वाला जीवन जिए। Lastly, अंत में I go to the book of 2 Timothy 3:16. मैं चलता हूँ दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3:16 में। It says, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। Hallelujah. And therefore today as I begin to end this sermon, और जैसे कि आज मैं इस संदेश का यहीं पर अंत करना चाह रहा हूँ, remember, याद रखें, God wants you to develop yourself to be a man of spirit so you are able to hear his voice consciously or unconsciously. खुदा चाहता है कि आप ऐसे अपने आप को बनाए कि आप उसके एक आत्मिक जन बन सके ताकि आप उसको सुन सकें। And then he wants you to go deeper in relationship with him by studying the word of God with the intent to know him. वो चाहता है कि आप उसके साथ उस गहरे रिश्ते में जाएं, वचन पढ़ने के द्वारा एक सोचे विचारों के साथ। I hope and pray that as you have listened to this sermon, the Lord bless and keep you. मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा रखता हूँ कि जैसा आपने संदेश सुना, खुदा आपको आशीषित करे और बनाए रखे।